Good morning, children. Already we have studied that first part of this chapter, changes around us. Today we are going to start part 2. I have sent material regarding this part 2. I am going to explain this. In this part, we will see that reversible changes, irreversible changes, what is the relevance of reversible change in our life, and we will see few assignment. In previous slides we have seen what is physical change and what is chemical change, what is the relevance of change in our life, whether changes are important or not important, and when changes occurs what happens with the material. So already we have seen. Now we are going to discuss about reversible and irreversible changes. So first we will discuss about reversible changes. So in very simple thing that we can say that reversible changes are those changes which can be undone or reversed, and these changes are observed in physical state, size and shape of the substances. A reversible change does not create a new material. Children, you can see that size of that particular material is changing, the state whether it is solid, liquid or gaseous state is changing, but there is no change in the material. It is not going to create a new material. We will see examples like it is given. See how this water, when we are heating it, it is converting into form of steam, and when we are cooling that steam, it is again converting into liquid, and when we are again freezing that liquid, that is water, it is converting into ice. But in all three stages, water, the quality of water is not changing. It is water, but the form of that water is changing. One in form, when it is water, it is in form of liquid, it is in liquid state. When it is steam, it is in gaseous form, and when it is in ice, it is in solid form, but the quality of water is not changing. So this is very good example of reversible change. Now we'll see some more example, like say again here it is written that melting of ice, boiling, evaporation and condensation etc. are example of reversible changes. And I have again one more example. We can see that reversible changes are folding a paper and blowing a balloon. सी विच अगर हम एक कोई भी पेपर लेते हैं, उसको हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद हम जो चाहें उसको वो शेप दे सकते हैं, लेकिन जब हम उसे अनफोल्ड करते हैं तो फिर से हमको वही पीस ऑफ पेपर मिल जाता है। अगर हम उसे कट नहीं करते हैं तो आप जैसे कभी जब हम छोटे थे तो हम एक उससे जहाज़ बनाते थे, या कभी कोई फ्लावर भी बनाते हैं, कभी नाव बनाते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन जब हम उसे अनफोल्ड करते हैं पेपर को तो फिर से हमें वही पीस ऑफ पेपर मिलता है। तो हमने क्या किया, शेप चेंज कर दिया, लेकिन हमने पेपर की क्वालिटी को, पेपर का जो मटेरियल है उसको हमने चेंज नहीं किया। तो ये एग्जांपल था रिवर्सिबल चेंजेस का। अब हम देखेंगे व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज। So irreversible change is just opposite to that reversible change. Here we cannot undo the material things. If it is done, once change occur, we cannot undo it. The example of this kind of thing is cake batter is made from eggs, flour, sugar and butter. Once the cake has been baked, you cannot get the ingredients back. हम जब भी केक बनाने का जो मटेरियल लेते हैं, उससे जब केक हम बनाते हैं तो केक बनने के बाद हम फिर से वो मटेरियल वापस नहीं ले पाते। सो ये एग्जांपल हुआ इरिवर्सिबल चेंज का। हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे कि जैसे हम भोजन पकाते हैं, कुकिंग, भोजन पकाने के लिए जो भी दाल चावल जो भी हम मिलाते हैं आपस में, वाटर डाल के और नमक हल्दी जो भी डाल के हम पकाना चाहते हैं, और हम फिर से चाहें कि दाल से हमें रॉ पल्स मिल जाए, रॉ वाली दाल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अनदर एग्जांपल है। कभी कभी कुछ चीज़ों को जब हम मिक्स कर देते हैं, वो भी इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल होता है। जैसे एग्जांपल में एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर व्हाई इट हैपन्स व्हेन विनेगर इज़ मिक्स्ड विथ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। सो ये भी एक
रिवर्सिबल एग्जाम्पल नहीं है, ये इरिवर्सिबल एग्जाम्पल है। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन फॉर्म ऑफ बबल्स ये रिलीज हो जाती है जब हम बाइकार्बोनेट को विनेगर के साथ मिलाते हैं। अगेन हियर वी कैन नॉट गेट बैक ओरिजिनल सब्सटेंसेस बिकॉज दिस इज सो क्लोज रिएक्शन, so that's why we are not able to get vinegar and bicarbonate separately। तो कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं कि बेकिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एंड बेकिंग ऑफ केक इज़ वन एग्जांपल। मेटल रस्टिंग मैंने आपको बताया था, रस्टिंग इज़ द प्रोसेस वेयर रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और रस्टिंग कहाँ होती है बेटा? मेटल्स में, मैक्सिमम मेटल। जैसे एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल इज़ आयरन। तो आयरन पे जब रस्टिंग होती है तो आप देखते हैं रस्टिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग्स, इट इज़, यू कैन से दैट इट इज़ कैंसर फॉर द मेटल्स। आयरन कैंसर, ये जो आप आयरन पे हमेशा देखते हो आपकी साइकिल के रिम पे या कोई भी आयरन का मटेरियल हो, तो वो ये रस्टिंग का जो रस्टिंग है ये मेटल्स के लिए कैंसर काजिंग है एक तरीके से, कि उनकी क्वालिटी को ख़राब कर देती है, उनका जो ड्यूरेशन होता है उसको घटा देती है, उसकी चमक को गायब कर देती है। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ इरिवर्सिबल चेंज का। हम रस्ट को साफ़ कर सकते हैं लेकिन रस्ट को ख़त्म करके और हम पुरानी जो क्वालिटी है मेटल्स की उसको हम वापस नहीं ला पाते। सी बर्निंग इज़ अनदर एग्जांपल। जैसे हम पेपर को लेके उसको जला दिया तो उससे हमें राख मिल गई और धुआं निकलता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई दीज आर एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। तो सम मोर एग्जांपल वी कैन से सी हियर, लाइक हमारी जो ग्रोथ होती है, एक बार हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम दोबारा छोटे नहीं होते, लंबाई में हमारे कोई भी कमी नहीं आती। और जैसे हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसको जब हम डाइजेस्ट करते हैं, अगेन दैट इज़ डाइजेशन इज़ अगेन इरिवर्सिबल चेंज। तो अब हम देखेंगे कि क्या हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ है हमारे लाइफ में, जो रिवर्सिबल चेंजेस हैं इनका क्या बेनिफिट है हमारे लाइफ में, कैसे हम इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वर्किंग ऑफ ब्लैक स्मिथ। तो जैसे हमारे यहाँ लोहार होते हैं बेटा, ये जो कोई भी ये हमेशा काम करते हैं आयरन के साथ, वुड के साथ। ये जब काम करते हैं तो सिंपली वी नो दैट व्हेन वी हीट अ मेटल इट एक्सपैंड। और जब ये फैलता है बेटा, जैसे ही हम उसे गर्म करते हैं ये फैलता है, मतलब इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। और अगर हम उसको कोई पर्टिकुलर शेप देना चाहें तो हम उसको फिर उस शेप में ला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो फैलता है वो लचीला हो जाता है। और लचीले होने के बाद दैट ब्लैक स्मिथ व्हाट इट डज, ये उसको अपने मनचाहे शेप में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जब ज़रूरत नहीं होती है तो फिर जाके वो हीट करके और फिर से उसको पुराने वाले शेप में चाहे तो वो ला सकता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया रिवर्सिबल चेंज का। सेकंड एग्जांपल इज़ फिक्सिंग मेटेलिक रिंग ऑन अ वुडन व्हील। आपको अभी बताया मैंने कि जैसे ही हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं ये एक्सपैंड करता है, और जब एक्सपैंड करता है तो इसकी साइज़ बढ़ जाती है। वुडन व्हील जैसे भी कोई भी लकड़ी का पहिया है और हम उसके ऊपर ये कोटिंग करना चाहते हैं, आयरन का कोई रिंग डालना चाहते हैं, तो जैसे ही हम वुडन रिंग को गर्म करेंगे, मेटेलिक रिंग को गर्म करेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। और जैसे ही बड़ा होगा हम उसको वुड के ऊपर फिट कर देंगे, और फिर जब उसे ठंडा करेंगे तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा और ये अच्छे तरीके से वुड पे, उस वुडन व्हील पे जाके फिक्स हो जाएगा। तो हम इसको आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगेन जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा था वुडन व्हील पे, वही एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, कि जैसे ही हम मेटल को हीट करते हैं ये एक्सपैंड होता है, और जैसे ही उसको कूल करते हैं, कूलिंग प्रोसेस करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो दिस इज़ अगेन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। फिक्सिंग वुडन हैंडल्स एंड टूल। हमारे घर पे बेटा जो तवा है, जैसे हम फ्राई पैन यूज़ करते हैं या कोई भी वेसल यूज़ करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ का वह हैंडल लगाया जाता है, लगभग मैक्सिमम टाइम लकड़ी का होता है, जिस पे हम आयरन की चीज़ों को फिक्स कर देते हैं। वहाँ भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की ही
चीज़ फॉलो होती है। जैसे ही हम उसको हीट देते हैं, मेटल जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है और वुड पे अच्छे से फिक्स हो जाता है, और ठंडा करने के बाद वो पूरे तरीके से उसको जकड़ लेता है, और जिससे कि हैंडल उसका निकलता नहीं है। तो ये असाइनमेंट है बेटा, हमको पता है आप लोग कर लोगे इसको, और करके नोट्स बना के आप बहुत हमारे मैसेज व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और ये 2 क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करें और इसका आंसर हमें दें। ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।